الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الجود والکرم والجمال وعلی آلہ واصحابہ الذین اولی الفضل والکمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت مکمل رمضان کو بامقصد گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے پچھلے جمعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اس جمعہ رمضان کا وہ عمل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جس عمل کی نبی اکرم سب کہیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی، اور رمضان میں من جملہ حضور نے وہ عمل قضا بھی نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ قضا ہوا تھا تو اگلے سال دوہرا ادا فرمایا، اور وہ عمل اس کے دن آنے والے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی مادی زندگی کا جو سائیکل ہے ہمارا، یہ صبح سے لے کر شام تک، رات تک کے جو معمولات ہیں، دفتر جانا، کارخانہ چلانا، کاروبار کرنا، جاب کرنا، یہ مادی زندگی کے سرکل کو توڑ کر 10 دن کے لیے مادیت کو چھوڑ کر اللہ کے در پہ آ جائیں۔ اعتکاف کرنا، اور یہ اعتکاف کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 کا ایک جزو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ سب سے پہلے جب میرا روئے زمین پہ گھر عصر نو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان دونوں سے یہ وعدہ لیا، ان کو تاکید کی، کیا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ میرے گھر کو صاف ستھرا کر دو۔ کیوں؟ میرے گھر میں 4 کام ہونے ہیں۔ کتنے کام ہونے ہیں؟ 4 طرح کے لوگوں نے میرے گھر میں آنا ہے۔ نمبر 1 للطائفین، وہ لوگ آئیں گے جو میرے گھر کا دیوانہ وار طواف کریں گے، 7 پھیرے لگائیں گے میرے در کے، بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف کرو۔ والعاکفین، اور وہ لوگ بھی آئیں گے جو مادیت سے بالکل بیگانہ ہو کر اپنی زندگی کے معمولات کو توڑ کر میرے در پہ آ کے پڑے رہیں گے، اعتکاف کرنے والے ہوں گے۔ ان اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی میرے گھر کو صاف کرو۔ پھر آگے فرمایا وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع کرنے والے بھی آئیں گے، سجدہ کرنے والے بھی آئیں گے، نماز پڑھنے والے بھی آئیں گے۔ اس کو آخر میں رکھا، سب سے پہلے طواف کو رکھا، طواف کے بعد کسے رکھا جی؟ اعتکاف کو رکھا۔ بولیے کسے رکھا؟ اعتکاف۔ تو طواف نصیب ہو جانا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اعتکاف نصیب ہو جانا حرم مکی کا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ طواف وہ عبادت ہے جو صرف بیت اللہ میں ادا ہوگی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ کہ طواف کے علاوہ باقی تینوں عبادات، چاہے وہ اعتکاف ہو، رکوع ہو یا سجدہ ہو، وہ دنیا کی کسی بھی مسجد میں ادا کی جا سکتی ہیں، کسی بھی مسجد میں۔
और फिर रकू और सजदा तो दिन में 5 मरतबा है। एतकाफ की इबादत साल में 1 मरतबा है, और यह सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है कि मोहल्ले की, कॉलोनी की, शहर की, गांव की मस्जिद में अगर कोई बंदा एतकाफ वाला है तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी एतकाफ नहीं करेगा पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका, पूरा शहर गुनाहगार होगा। एतकाफ की इबादत है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तवाफ के बाद का दर्जा दिया। मैं आगे इस पे आऊंगा, बल्कि अभी बात कर देता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने घर के कितने मकासिद बयान फरमाए जी? बोलिए 4। पहला मकसद क्या बयान किया? तवाफ करने वालों के लिए घर पाक करो। दूसरा मकसद क्या बयान किया? एतकाफ करने वालों के लिए मेरे घर को पाक करो। आप मुझे बताइए, क्या तवाफ में हम में से कोई ऐसा है जो गए हैं, अल्लाह ने जिन्हें नसीब किया, कि तवाफ का एक फेरा लगाकर अखबार पढ़ने लग गए हो? बोलते नहीं आप, है कोई? तवाफ के 2 चक्कर लगा के मोबाइल और फेसबुक चलाने लग गए हो? कोई है ऐसा बंदा? बल्कि वो तो एक दीवानगी की कैफियत है, वारफ्तगी की कैफियत है। बंदा होशो हवास से बेगाना, उसकी तमाम तर लो अल्लाह के साथ लगी होती है। जब तक 7 चक्कर मुकम्मल नहीं होते बैतुल्लाह के, वो तवाफ में दीवाना वार घूमता है। जिस तरह तवाफ की इबादत सिर्फ अल्लाह की तरफ ध्यान का तकाजा करती है, बिआइनी ही उसी तरह एतकाफ की इबादत भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ ध्यान का तकाजा करती है। आप एतकाफ में हैं मस्जिद में, 1 दिन 2 दिन के बाद आपको यह इजाजत नहीं है आप अखबार मंगा के पढ़ने लग जाएं। आप 2 दिन के बाद मोबाइल पे मसरूफ हो जाएं, गपशप लगाने लग जाएं। जो लोग, जिन्होंने नाम मुझे कारी साहब बता रहे थे, काफी साथियों ने नाम लिखवा दिए हैं, जो रहते हैं वो नाम लिखवा दें, फिर जगह मुकम्मल हो जाती है यहां पे। जिन्होंने नाम लिखवाए हैं और जो नाम लिखवाना चाहते हैं, जो यहां पे एतकाफ करना चाहते हैं या कहीं और एतकाफ करना चाहते हैं, वो एतकाफ के हर लम्हे में ये सोच लें कि अल्लाह ने एतकाफ को तवाफ के बाद रखा है, रकू और सजदे से पहले रखा है। क्या रकू और सजदे में हमें यह इजाजत है कि हम रकू और सजदे को छोड़कर कुछ और करने लग जाएं? तो जब रकू और सजदे में, दरमियाने रकू दरमियाने सजदा के अंदर कुछ और करने की इजाजत नहीं है, तो 10 दिन के एतकाफ के अंदर कहां यह इजाजत होगी कि हम गप्पे हाँकने लग जाएं, हम मस्खरापन करने लग जाएं, हम गपशप की महफिलें लगाने लग जाएं? 10 दिन ये अल्लाह के साथ लौ लगाने के दिन है। बोलिए 10 दिन किसके दिन है? और जिन्होंने ये एतकाफ किया, उसकी रूह के साथ किया, अल्लाह ने उन्हें नवाजा है। बोलिए अल्लाह ने उन्हें, हत्ता के अंबिया जो इंसानियत के तबके में सबसे मुकद्दस हस्ती हैं, अंबिया को भी जब अल्लाह ने नेमत उज़्मा से नवाजा तो एतकाफ में नवाजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान में आता है, तूर पे जाके एतकाफ किया तो अल्लाह ने तौरात जैसी मुकद्दस किताब अता फरमा दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में तो नहीं है, लेकिन इंजील में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एतकाफ फरमाया और उसके बदले में अल्लाह ने इंजील जैसी मुकद्दस किताब अता फरमा दी। और मेरे और आपके पैगंबर, सरवर कौनैन साकी कौसर पैगंबर, ताजदार मदीना पैगंबर, फख्र दो आलम पैगंबर, आमना के दुर्र यतीम, महबूब किबरिया अहमद मुश्तबा, बुलंद आवाज से मोहब्बत से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद हैं, एतकाफ की हालत में है कि अल्लाह ने बनफ्से नफीस हजरत जिब्राइल को भेज के हुजूर को कुरान अता फरमा दिया। तो एतकाफ में तो अल्लाह नवाजता है, और अल्लाह ऐसा ऐसा नवाजता है कि जो एतकाफ के अलावा हालतों में अल्लाह नवाजता, बस जिंदगी में एक एतकाफ भी नसीब हो जाए जो कारआमद हो, एक एतकाफ नसीब हो जाए जो काम का हो, एक एतकाफ जो एतकाफ की रूह के ऐन मुताबिक हो, वो एक एतकाफ जिंदगी के जाविये को बदलकर अल्लाह के कुर्ब को पाने के लिए काफी हो जाता है इंशाअल्लाह। तो इरादा करते हैं सब साथी कि नहीं इंशाअल्लाह आखिरी अशरार एतकाफ करेंगे कि नहीं करेंगे? इरादा फरमाएं, कोशिश करें मामूलात से वक्त निकालने की। एतकाफ में, एतकाफ के फजाइल मैंने गुज़िश्ता जुमा भी आपके सामने बयान कर दिए थे कि 1 दिन का एतकाफ जहन्नम से 3 खंदकों का फासला पैदा कर देता है।
یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اپنے والد حضرت حسین بن علی سے روایت کرتے ہیں، حضرت حسین حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے. اور 3 خندقیں کیسی؟ ایسی نہیں 9 میل 10 میل 5 میل 4 میل، نہیں نہیں نہیں، ایک خندق کی مسافت مشرق سے لے کر مغرب تک ہے. تو جب ایک دن کا اعتکاف 3 ایسی خندقوں کی مسافت پیدا کر دے بندے اور جہنم کے درمیان، جس میں ایک خندق کی مسافت مشرق اور مغرب کے درمیان ہو، تو 10 دن کا اعتکاف جو کرے گا اسے جہنم کی آگ کہاں چھوئے گی؟ ہے تو مشکل آج کے اس مادی دور میں 10 دن نکالنا، یہاں تو 5 وقتی نماز کا وقت نکالنا مشکل ہے بھائی. لیکن جس نے نکال لیا زندگی میں ایک دفعہ، یہ رمضان پتہ نہیں آگے نصیب ہو کہ نہ ہو، جس نے نکال لیا اس کے پلے ہرے ہی ہرے ہیں. پھر لجپالوں کے لگ لڑنے سے پلے ہرے نہیں ہوتے، اللہ کے در پڑنے سے پلے ہرے ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ جنہیں بری نہیں لگی بات، اچھی لگی، وہ بلند آواز سے بولیں. آج نعت خانوں نے آپ کو ایسا ایسا چونا لگایا ہوا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں. بس آتے ہیں بڑی بڑی پیسے لے کے آپ سے چلے جاتے ہیں، میں لجپالاں دے لڑ لگیا میرے پلے. اور لجپالوں کے لڑ لگنے سے پلے ہرے نہیں رہیں گے. ہاں فائدہ ہوگا، لیکن اسی لجپال کے لڑ لگنے کا فائدہ ہوگا جو لجپال آپ کو اللہ کے در پہ پڑھنے کا عادی بنا دے. جب اللہ کے در پہ پڑھنے لگ جائیں گے تو پلے ہرے ہی ہرے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ایسا لجپال جو کہ بس تو میرے پاس آ گیا، اب تیری نمازیں مکہ مدینہ میں ہوتی ہیں، تجھے مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تیری نماز تیری روح پڑھے گی تو گھومتا رہ، میں تجھے بچاؤں گا. ایسے لجپال کے لڑ نہ لگیے گا، یہ پلے ہرے نہیں کرے گا، کچھ اور کر دے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق کامل عطا فرمائے، آمین کہیے. اعتکاف میں جو کرنے کے کام ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ اگلا جمعہ جب میں آؤں گا تو یہاں پہ الحمدللہ معتکفین کی رونق ہوگی. آپ جلد سے جلد نام لکھوائیے. آپ جانتے ہیں جامع مسجد تقویٰ میں قیام کا انتظام بھی اچھا ہے اور کھانا بھی مسجد کی طرف سے ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ کہیں سب. اس مہنگائی کے دور میں لوگ بچوں کو نہیں کھلا سکتے، یہ معتکفین کو کھلاتے ہیں. اور معمولات یومیہ کی ایک ایسے مربوط نظام اور کڑی ہے جو آپ کے اعتکاف کو مفید تر بنائے گی انشاءاللہ. یہاں اعتکاف ایسا نہیں ہوتا دوسری مساجد کی طرح کہ بس نوجوان ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں جی اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں اور مجلسیں لگی ہوئی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے جی. نہیں نہیں، یہاں پہ اعتکاف کا ایسا ماحول نہیں ہے. یہاں تو صبح سے لے کر شام تک اور شام کے بعد وقت تہجد سے لے کر افطار تک معمولات کی باقاعدہ ایک مربوط نظام ہے، جس میں آپ کے آرام کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے، آپ کے طعام کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے، آپ کے گھر والوں کو یہاں کھانا پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اتنا سنہری موقع آج کے دور میں ملا ہوا ہے، 10 دن اللہ کے در پہ پڑے رہنا ہے. اللہ کھلائیں گے بھی صحیح، اللہ پلائیں گے بھی صحیح. تو اس موقع کو ضائع نہ فرمائیے. جو لوگ اعتکاف کریں گے اعتکاف میں کرنے کے کام سن لیجئے. کچھ کام تو ایسے ہیں جو فزیکلی ہم نے کرنے ہیں، جن میں عموماً غفلت ہو جاتی ہے. پہلا کام تو یہ ہے کہ ویسے بھی رمضان میں تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے. رمضان میں ویسے بھی تہجد کی نماز، تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے، یاد رکھیے گا. بعض کہتے ہیں جی تراویح ہی تہجد کی نماز ہے، نہیں، صلاۃ اللیل الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے. رمضان میں تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر رمضان میں موقع کم و بیش ملا ہے تو معتکفین کے لیے تو سنہری موقع ہے. اور جامع مسجد تقویٰ میں تو نظم ہے، باقاعدہ جگا دیا جاتا ہے، پڑھوائی جاتی ہے. جب ظاہر ہے یہاں معتکفین کی ایک کافی تعداد ہوگی جو پڑھ رہی ہے، نماز تہجد میں کھڑی ہے، تو کون ہوگا جس کا سونے کو دل کرے؟ وہ خود ہی جاگ جائے گا کہ باقی پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھوں. اور اگر اعتکاف ہی ایسی جگہ پہ ہے جہاں سبھی سو رہے ہیں اور گھر والے افطاری دینے آ رہے ہیں، گپ شپ بھی لگا رہے ہیں، ایسا ماحول ہے تو ظاہر ہے وہاں تہجد تو ہوگی نہیں. اور اگر اب تہجد پڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ سنیے اللہ نے حضور کو کیا فرمایا. حضور کو اللہ رب العزت نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، محبوب
तवज्जो भाई, तवज्जो तवज्जो, आशिकों की तवज्जो चाहता हूं। महबूब रात का थोड़ा सा हिस्सा तहज्जुद पढ़ा करें, नाफिलतल लक, ये आपके लिए नफिल है। बोलिए आपके लिए क्या है? तो होगा क्या? अल्लाह असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। महबूब आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें थोड़ा सा इस रात को, होगा क्या? अल्लाह महशर के मैदान में आपको मकाम महमूद अता फरमा देगा। अब सुनिए, तहज्जुद की नमाज हुजूर के लिए नफिल है, और नफिल का सदका यह है कि अल्लाह मकाम महमूद अता फरमा रहे हैं। और जिस पैगंबर की नफलों की शान ये हो कि अल्लाह उसके नफिल पढ़ने पर उसे मकाम महमूद अता फरमा दें, उस मुस्तफा के फर्जों की शान का आलम क्या होगा। और यह मकाम महमूद क्या है? अक्सर उलमा ने तो यह लिखा है कि मकाम महमूद से मुराद वो शफाअत है जो हुजूर कयामत के दिन मेरी और आपकी फरमाएंगे। जो मेरी और आपकी हुजूर कयामत के दिन शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, रियाजुल जन्ना के दरवाजे पे यह हदीस लिखी है। हुजूर ने फरमाया कि कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के हक में भी सिफारिश करूंगा। सिफारिश फरमाएंगे हुजूर कयामत के दिन। यह मकाम महमूद है। अब हुजूर को तो तहज्जुद के सदके मिला मकाम महमूद, क्या? हक के सिफारिश। और हमें क्या मिलेगा? अगर मैं और आप तहज्जुद पढ़ेंगे तो मेरा विजदान यह कहता है कि हुजूर को तो सिफारिश करने का हक अल्लाह देगा, और जो हुजूर की इक्तदा और मोहब्बत में तहज्जुद की नमाज का आदी बन जाएगा, अल्लाह कयामत के दिन उसे हुजूर की सिफारिश अता फरमाएगा, वो नसीब फरमा देगा अल्लाह। तो तहज्जुद की नमाज एतकाफ में इसको बिल्कुल ना छोड़ें जी। उसके बाद सहरी है, सहरी के बाद फजर की नमाज है। ये अच्छा बड़ा अजीब कल्चर है। तमाम हजरात माशाल्लाह आपने मस्जिद भरी हुई है, बाहर का आपने रास्ता बंद किया हुआ है। आप सुने जरा मोहब्बत से ये बात। ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि रमजान में वो मस्जिद भरी होती है ज्यादा जिसमें फजर की नमाज जितना जल्दी हो। बल्कि मुक्तदी कहते हैं जी सहरी अब जल्दी बंद हो रही है, फजर भी पीछे करो, रिवर्स करो। भाई क्यों? मैंने सोना है, मैंने क्या करना है। वो एक हजरत हमारे दोस्त हैं, वो नमाज पढ़ के जब जाने लगे, मैंने कहा भाई थोड़ा रुक जाओ, मस्जिद में थोड़ी देर ऐसे बात गपशप लगाते हैं, फिर इशराक पढ़ के निकलते हैं। कहते हैं नहीं मुझे छेड़ो नहीं, मैंने अपनी आंखों में नींद को संभाल के रखा हुआ है। अगर सूरज उग आया तो मेरी आंखों से नींद उड़ जाएगी, छेड़ो नहीं कहते हैं मुझे। मेरी और आपकी यह आदत है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा फजर की नमाज पढ़े, जमात के साथ पढ़े और नमाज की जगह पे मौजूद रहे, तिलावत करे, जिक्र व अज़कार करे सूरज तलू होने तक, और सूरज तलू होने के बाद 2 रकत नमाज इशराक पढ़े, हुजूर ने फरमाया कानत लहू का अजरी हज्जतिन व उम्रतिन ताम्मतन ताम्मतन ताम्मतन। 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसे पूरा 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 हज और उम्रा करने का सवाब अता फरमा देगा। हुजूर ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस। रमजान में इतना बड़ा अजर हम जाया कर जाते हैं, क्या बस सोना है जी। भाई इशराक पढ़ के सो जाओ, कैलूले के वक्त में सो जाओ। तो जाहिर है आपकी मजबूरी होगी, आप कारोबार करते हैं, कारखानों में आते हैं, दफातर में जाते हैं, आप नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते होंगे, सहरी के बाद जाग नहीं सकते होंगे, तो कम से कम 10 दिन तो है ना एतकाफ के। एतकाफ में तो दफ्तर नहीं जाना, एतकाफ में तो कारोबार नहीं करना, कारखाने में नहीं जाना, जॉब पे नहीं जाना, दुकान पे नहीं जाना, कॉलेज में नहीं जाना, इदारे में नहीं जाना। 10 दिन एतकाफ के हैं। इशराक पढ़ के भी आराम किया जा सकता है, लेकिन जो बंदा इशराक पढ़ने का आदी बनेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इशराक के बाद एक नमाज है, नमाज चाश्त। बोलिए कौन सी नमाज है जी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, तवज्जो है आप सबकी। हमें भी रोजा होता है भाई, रोजा हमें भी होता है, हम भी रोजे से होते हैं। और रोजे से बोलना आप जानते हैं जरा मुश्किल है, लेकिन हम आपकी मोहब्बत में आते हैं कि इतनी तादाद में आप आए होते हैं और मैं ना आऊं तो ज्यादती है कि नहीं। मैं आपकी मोहब्बत में आता हूं, आप मेरी मोहब्बत में सुभान अल्लाह कह दें।
तवज्जो भाई, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मोमिन जब जागता है तो उसके हर हर जोड़ पर, हर हर उंगली के पोर पर, हर हर जिस्म के जोड़ पर सदका करना वाजिब होता है। सुबह जब मोमिन जागता है तो उसके हर हर जोड़ पर, हर हर पोर पर सदका देना क्या होता है जी? वाजिब हो जाता है। सदका दे, वो हक है, सदका दे। लेकिन जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व युजज़िउ मिन ज़ालिका रकअतान यरकाउहा मिन अज़्ज़ुहा, जो बंदा चाश्त की 2 रकअतें पढ़ लेता है अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे जिस्म का सदका कबूल फरमा लेते हैं। चाश्त की 2 रकअतें, पूरे दिन के जिस्म का सदका, हर हर जोड़ का सदका, हर हर पोर का सदका अल्लाह कबूल फरमा लेंगे। 2 रकअतें चाश्त। आमतौर पे तो वक्त नहीं मिलता होगा क्योंकि वो पीक वक्त है आपका, आपके दफ्तर का, आपके कारखाने का, आपकी जॉब का। लेकिन अगर आप 10 दिन का एतकाफ करेंगे तो एतकाफ में जामे मस्जिद तकवा में आपको बता के जगाया जाएगा, भाई चाश्त भी पढ़ लो, चाश्त भी पढ़ लो, और इसी नीयत से पढ़िएगा कि मैं अपने जिस्म के हर हर जोड़ का, हर हर पोर का सदका दे रहा हूं। सदका अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। आगे एक नमाज है, फिर मगरिब की आप अफ्तारी होती है। अच्छा, ये भी रमजान में एक बड़ा कल्चर आ गया है कि अफ्तारी इतनी ज्यादा कर ली जाती है कि पहले तो मस्जिद चल के आना मुश्किल, और अगर मस्जिद चल के आ गए तो रुकू सजदा करना मुश्किल, और अगर रुकू सजदा कर भी लिया, फर्ज पढ़ भी लिए हैं, तो सुन्नतें पढ़ना मुश्किल। हालांकि सुन्नतों के बाद 6 रकत नफिल है। क्या है जी? 6 रकत, जिसे सलातुल अव्वाबीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? बोलिए। सुनिए सलातुल अव्वाबीन के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मगरिब के बाद 6 रकत सलातुल अव्वाबीन पढ़े और उन 6 रकतों के दरमियान कोई दुनिया का काम ना करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 12 साल की मकबूल इबादत करने का सवाब अता फरमा देते हैं। 12 साल की मकबूल इबादत का सवाब 6 रकतों से हासिल होगा। ये जो मैं कह रहा हूं ना कि इतना सवाब उतना सवाब, अभी हमें समझ नहीं आ रहा। अभी समझ, अगर मैं यहां पे ये कहूं कि जो मगरिब के बाद 6 रकत सलातुल अव्वाबीन पढ़ेगा, मस्जिद की इंतजामिया उसे 12 लाख दे देगी, तो यहां पे जगह नहीं मिलेगी हजरत, जगह नहीं मिले, हमें भी भगा देंगे बाहर पकड़। वो कहेंगे आप तो रोज पढ़ते हो, हमें पढ़ दे दो। यहां लाइन लगी होगी बाहर 6 रकतें पढ़ने वाले की। क्यों? 12 लाख वो करेंसी है जो इस दुनिया में चलती है। उस करेंसी की वैल्यू हमें पता है कि 12 लाख का क्या क्या मिलेगा, लेकिन 12 साल की मकबूल इबादत, ये वो करेंसी है जो कब्र में मरने के बाद चलेगी। वो यहां नहीं चल रही, इसलिए उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं। हम एक कान से सुन के उसी से निकाल देते हैं, मियां मौलवी की बात है, मौलवियों का काम है, लगाए रखते हैं। भाई ये मौलवी की बात नहीं है, ये कब्र के बाद जो करेंसी काम आनी है उसकी बात है। मगरिब के बाद की 6 रकतें 12 साल की मकबूल इबादत का सवाब अल्लाह अता फरमा देते हैं। एक और हदीस है अल-मुजमुल औसत की, अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। अवाबीन के बारे में वो भी सुन लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुफिरत लहू ज़ुनूबहू व इन कान मिस्ल ज़बदिल बहर, अल्लाह रब्बुल इज्जत अवाबीन पढ़ने वाले के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, अगरचे उसके गुनाह समंदर की झाग जितने ही क्यों ना हो। तो आमतौर पे तो वक्त नहीं मिलता होगा, आपने नमाज पढ़ के घर भागना है, लेकिन इत्काफ में अगर आप हैं तो आपने घर जाना, और मस्जिद तकवा में जब तमाम मोतकफीन अवाबीन पढ़ रहे होंगे तो आप भी तो पढ़ेंगे ना, जाहिर है। तो एतकाफ की बड़ी, ये 10 दिन बड़े अहम है, ये 10 दिन बड़े कीमती बन सकते हैं। मस्जिद तकवा की इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल इंतजाम हर साल होता है बिहम्दिल्लाह, और जिन्होंने एतकाफ किया है वो जानते हैं कि कितना मुफीद होता है। तो इरादा फरमाएं, नियत फरमाएं, नाम लिखवाएं। आगे सुनिए जी, ये तो काम हो गए ना, क्या क्या बताया, इशराक, चाश्त, अवाबीन, तहज्जुद, ये इसकी पाबंदी एतकाफ में करनी है। 2 बातें और सुन लीजिए। एक चीज और रह गई, रोजाना की बुनियाद पर एतकाफ में अगर आप हैं, या वैसे एतकाफ में नहीं भी हैं, रमजान में हैं, लोग हमसे पूछते हैं जी काज़ियुल हाजात अमल बताइए। क्या बताइए? बोलिए क्या बताइए? ऐसा अमल बताइए हाजात क्या हो जाए हमारी।
बता दूं अमल? नहीं, तवज्जो नहीं है। आप जाते किसी पीर के पास, वो आपसे 50 लाख 1 लाख का नजराना लेता और फिर वो आपको कोई वजीफा बताता, फिर आप सुनते। मैं हूं मुफ्त वाला पीर मुझे आपने कोई नजराना भी कोई नहीं देना और मैं अमल बता रहा हूं तो आपने तवज्जो भी पूरी नहीं करनी है। तवज्जो, सुनिए वो अमल जो हुजूर ने बताया। किसे बताया? अपने चचा हजरत अब्बास को। हुजूर बता रहे हैं, अपने चचा को बता रहे हैं, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। अबू दाऊद की हदीस, हुजूर फरमा रहे हैं हजरत अब्बास को, चचा एक तोहफा ना दूं आपको? हुजूर फरमा रहे हैं, चचा एक तोहफा ना दूं आपको? हजरत अब्बास ने फरमाया, भतीजे बिल्कुल दो। कैसा तोहफा है? हुजूर ने फरमाया, चचा तोहफा ऐसा है कि गफर अल्लाहु लका ज़ंबका अव्वलहु व आखिरहु क़दीमहु व हदीसहु ख़ताअहु व अमदहु सगीरहु व कबीरहु सिर्रहु व अलानियतहु। चचा ऐसा तोहफा है कि वो तोहफा अगर ले लोगे, कबूल कर लोगे, तो अल्लाह ताला पहले वाले गुनाह भी माफ कर देगा, आने वाले गुनाह भी माफ कर देगा, नए गुनाह भी माफ कर देगा, पुराने गुनाह भी माफ कर देगा, गलती से जो किए वो भी माफ कर देगा, जानबूझकर जो किए वो भी माफ कर देगा, गुनाह सगीरा भी माफ कर देगा, गुनाह कबीरा भी माफ कर देगा, छुप के जो किए वो भी माफ कर देगा, खुल्लम खुला किए वो गुनाह भी अल्लाह माफ कर देगा। ऐसा तो ये हदीस का तर्जमा किया आपके सामने। अबू दाऊद की रिवायत, हदीस नंबर 1297, जाके देखिएगा अबू दाऊद में। वो क्या अमल है? हुजूर ने फरमाया, चचा जिंदगी में एक बार, जिंदगी में नहीं चचा, रोजाना एक बार, रोजाना नहीं कर सकते, हफ्ते में एक बार नहीं कर सकते, महीने में एक बार नहीं कर सकते, साल में एक बार नहीं कर सकते, जिंदगी में एक बार सलातुत तस्बीह पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? रमजान में तो रोज पढ़े, मोतकफीन आदत बनाए नमाज ज़ुहर के बाद पढ़े, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता जी। तरीका है, हदीस में पूरा लिखा हुआ है। अगर थोड़ी सी ताखीर हो जाए, थोड़ी से मुराद आप जानते हैं, जमात तो खड़ी कर दूंगा, तरीका बता दूं सलातो तस्बीह का हजरत? आसान है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 4 कलमे हैं, सही है जी। सना पढ़ें, सना के बाद फातिहा है, सूरत मिलाएं, 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। कितनी मरतबा? रकू में चले जाएं, रकू में जाने के बाद तस्बीह के बाद फिर 10 मरतबा, रकू से खड़े होकर कौमा में 10 मरतबा, सजदे में तस्बीह के बाद 10 मरतबा, सजदे के बाद कादा में आते हैं 10 मरतबा, दूसरे सजदे में भी 10 मरतबा, दूसरे सजदे के बाद पहली रकत के अंदर कयाम में खड़े होने से पहले तशहुद की हालत में फिर 10 मरतबा। यह होगी 75 मरतबा। कितनी मरतबा? अबू दाऊद की जो हदीस मैंने आपको सुनाई है उसमें यही तरीका है। इसके अलावा एक तरीका और भी है जो मैं पढ़ता हूं, वो क्या है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा के बाद सूरतुल फातिहा से पहले 15 मरतबा, और सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा, फिर रकू में 10 मरतबा, कौमा में 10 मरतबा, सजदा उला में 10 मरतबा, सजदा उला के बाद कादा में 10 मरतबा, सजदा सानिया में 10 मरतबा, फिर अगली रकत में खड़े होते जाएं, क्योंकि 75 बार हो जाएगी। आपने ये ध्यान रखना है कि हर रकत में आयत ये 4 कलमे पढ़ने 75 बार। कितनी बार? 4 रकत सलातु तस्बीह है, 4 रकतों में सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना है 300 बार। कितनी बार? होगा क्या? अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को धो के माफ फरमा देगा। तो इत्काफ में इसका भी मौका होगा, आपको याद दहानी भी कराई जाएगी, यहां रोजाना का मामूल में शामिल होगा। तो इन चीजों का आपने एहतमाम करना है। अगली और आखिरी चीज आपकी मोहब्बत में सुना देता हूं, याद आ गई। एतकाफ में वैसे तो बावजू रहना है आपने, मोतकफीन क्या रहते हैं जी? वैसे भी आदमी को बावजू रहना चाहिए। एक सहाबी आ गए, उन्हें अगर कहा या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूं मेरा रिज्क बढ़ जाए, मेरा रिज्क। हुजूर ने ये नहीं फरमाया एक कारखाना है दूसरा लगा ले, है? ये भी नहीं फरमाया थोड़ी सी चीजें जखीरा कर ले, है? जखीरा अंदोजी कर, कारखाने लगा।
पैसा लगा? नहीं। हुजूर ने फरमाया दुम अलत तहारा, हमेशा बावुजू रहा कर, अल्लाह तेरे रिज्क में इजाफा फरमा देगा। और जब वुजू करें, एतकाफ मोतकफीन या जो भी, वुजू के बाद 2 रकत पढ़ लिया करें। वुजू के बाद बोलिए 2 रकत पढ़ लिया करें। होगा क्या 2 रकत के पढ़ने से? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए। बुखारी की हदीस नंबर 1149 है जो सुनाने लगा हूं। आखिरी हदीस है, बात को खत्म कर रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, सैर कराई गई। जब हुजूर जन्नत में गए तो हुजूर ने सुना कि जन्नत में मुझसे पहले किसी के कदमों के चलने की आवाज आ रही है। तो हुजूर ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल, आज का मेहमान तो हूं मैं, मुझसे पहले जन्नत में कौन चल रहा है? जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, चल कोई भी नहीं रहा, चल जन्नत की सैर सिर्फ आप कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल फिर ये कदमों की आवाज कैसी है? जिब्राइल अमीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो जो आपका गुलाम है ना, हबशी नस्ल, रंग का काला, कद का पस्त, शक्लो सूरत दरमियानी, नस्ली गुलाम, जिसका नाम बिलाल बिन रबाह है, अल्लाह ने उसको मकाम इतना अता किया है, वो चलता तो मक्का मदीना की गलियों में है, अल्लाह उसके कदमों की चाप जन्नत की हूरों को सुनवाता है। हुजूर वापस आए। हुजूर ने वापस आकर हजरत बिलाल से पूछा, बिलाल सुनिए, बुखारी के जो लफ्ज हैं वो सुनिए, बिलाल इन्नी समीतु दफ़ना अलैका बैना यदैया फिल जन्ना, बिलाल मैंने जन्नत में तेरे कदमों की चाप अपने से आगे सुनी है, बिलाल तेरा अमल कौन सा है? हजरत बिलाल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, और तो कोई ऐसा खास अमल नहीं है, बस ये है कि हमेशा वुजू की हालत में रहता हूं, और जब भी वुजू करता हूं तो तहियतुल वुजू की 2 रकतें भी पढ़ लेता हूं। तो जब भी वुजू करें तो रूखा वुजू ना करें, वुजू के बाद 2 रकतें जरूर पढ़ लें तहियतुल वुजू। तो एतकाफ कीजिए, जामे मस्जिद तकवा में अपना नाम लिखवाइए। आपके कयाम का इंतजाम भी मस्जिद की तरफ से है, आपके खाने पीने का इंतजाम भी मस्जिद की तरफ से है। यहां पर मामूलात की मुकम्मल एक तरतीब है, नज़म है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़िए, सुन्नतों के बाद